In today's lecture of chapter number 2, solution, we will discuss the topic is called Henry's law. Most important point of this chapter. Exactly, the purpose of Henry's law is what? It gives quantitative relation between solubility of gas in liquid solvent and the pressure of that gas. Mainly Henry's law is what? It's a quantitative relationship between the solubility of gas and the pressure of that gas. So in last lecture we have studied how the pressure of gas affect the solubility of gas. So in that lecture we have just told pressure increase, solubility increase, but how? It directly proportional और स्क्वायर करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट वो रिलेशन क्या. सो फॉर दैट हेनरी लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of that gas. Very easy statement by Henry. But the thing is that at constant temperature, because you are want to know the effect of pressure, so temperature must be constant. So at constant temperature, the solubility of gas is directly proportional to the pressure of that gas. At the same time, Dalton also told same thing. डाल्टन का स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, solubility is a function of partial pressure of the same gas. So हेनरी का बोलना और डाल्टन का बोलना सेम है. ओके, सो हेनरी ने कुछ रिलेशन दिया, अब उसको हम मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. इसको कैसे? तो मान लो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, यहां से आपको ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा. नाउ solubility of gas, solubility it's one kind of concentration. okay, so solubility को आप कैसे लिखोगे? बिकॉज देर आर 9 पर्टिकुलर यूनिट्स: मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, फॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड ppm. so which of that I have to select? so for gas हम मोल को डिफाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए. गैसियस मोल कितने डिसॉल्व हुए वो देखना है मुझे. तो फॉर मोल it's easy to find out mole fraction, because in mole fraction we just require what? Mole divided by total mole. okay, so for solubility of gas I have taken mole fraction. clear why mole fraction is taken? अगर आप मोलारिटी लेते हो तो उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये सब लेना पड़ता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, बट यहाँ पे डायरेक्टली आपको मोल लेना है, मोल बाय टोटल मोल. सो इट्स इजी टू फाइंड आउट solubility with respect to x. now pressure is pressure. So how can we denote this particular statement? So we can say the solubility is directly proportional to the pressure. okay, so we can write it P is proportional to solubility, and solubility is what? Mole fraction. So it's a mathematical expression of Henry's law. P is directly proportional to mole fraction. When you remove proportionality, you have to put one proportionality constant, that is Kh.
where kh is Henry constant, okay, x is mole fraction and P is partial pressure of that gas. Okay, so this is your mathematical expression for Henry's law. I think you are very much clear. जैसे ही हमने proportionality निकाली, I have put a proportionality constant that is called Henry constant. Okay, now देखो स्टेटमेंट हो गया, उसको सपोर्ट मिल गया, फिर हमने कैसे उसको लिखना है वो बताया. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ, अब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कोई भी whenever you want to plot any graph, you just compare this particular formula with y equals mx plus c. This is the formula for line in mathematics. So this is y axis, that is of pressure. Okay, and x axis of x means mole fraction. 0 जो भी आप ले सकते, 0.1 ले लो, 0.2, 0.3. यहाँ पे आप एटमोस्फियर में लेते हो तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा लो, बाहर में लेते हो, इस तरह आप चेंज करते रहो. यहाँ पे ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तो 500, 1000. यहाँ पे यूनिट के वाइज यहाँ पे आपके नंबर चेंज होंगे. अब ये देखिए, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, बट यहाँ पे इंटरसेप्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है 0. तो ये बहुत अच्छी चीज है. व्हेन इंटरसेप्ट इक्वल्स 0, इट मींस योर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यहां से स्टार्ट होगा. नाउ सेकंड थिंग, m इक्वल्स स्लोप. सो m इक्वल्स slope, value of slope, and that is what? kh. and kh पॉजिटिव है, देख लो यहाँ पे आगे पॉजिटिव है. तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लीनियर होगा, इस तरह से कुछ होगा, ये और ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो. तो ये हो गया स्लोप इक्वल्स kh. इंटरसेप्ट 0 है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, y एक्सिस प्रेशर है और x एक्सिस मोल फ्रैक्शन है. ओके, सो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH. KH कांस्टेंट है बट वो डिपेंड करता है द टाइप ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर इटसेल्फ. ओके, सो KH डिपेंड्स ऑन टू थिंग. टाइप ऑफ गैस मीन्स गैस चेंज होते ही KH चेंज हो जाएगा. सेकंड, सेम गैस के लिए अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी KH चेंज हो जाएगा. यानी O2 और N2 का KH ले लो, तो मान लो ये X है तो ये Y हो जाएगा. बट O2 का ही KH ले लो एट टेम्परेचर 298 एंड 308, तो भी KH की वैल्यू अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी है. सो फॉर सेम गैस टेम्परेचर चेंज, KH चेंज. फॉर डिफरेंट गैस KH इज ऑलवेज डिफरेंट. सो KH आप बोलते हो कांस्टेंट, बट उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज है क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं करता. बट वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि KH को आप मल्टीप्लाई करोगे मोल फ्रैक्शन से, तब वो प्रेशर पे जाके फॉर्मूला देगा. तो अब मेरा सेकंड बोर्ड वर्क है, वो पूरा डिपेंड करता है, पूरा आपको डिस्क्राइब करूंगा KH के बारे में. तो 1 मिनट. Henry's law is the quantitative relationship between the solubility of gas and the pressure of that gas. जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उसको रिलेशन दे दिया हमने. ये आपका रिलेशन है, pressure is proportional to solubility. But the point is that solubility of gas must be in mole fraction because other units are not so much suitable like mole fraction. You can use other, but most suitable for solubility is mole fraction. So I have taken mole fraction, ये ले लिया, उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसमें से हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया. ये पूरा ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया. इंटरसेप्ट 0 है तो इसका ओरिजिन यहां से होगा. क्लियर. फिर हम पढ़ लिया KH डिपेंड्स ऑन टू थिंग, टाइप ऑफ गैस एंड टेम्परेचर. नाउ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ KH.
फर्स्ट, एज वी नो, KH डिपेंड्स ऑन गैस, type of gas. If gas change, KH will change. KH will change. Second, KH depends on temperature. Now, how it depends on temperature? If you increase temperature, KH will increase. And if you decrease temperature, KH will decrease. Now the point is that सर आप ये कैसे लाए? तो देखिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, P इक्वल्स बताइए KH इंटू एक्स। अब आप लास्ट लेक्चर में याद कीजिए, हमने कुछ ऐसा बताया था कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो X डिक्रीज हो गया। अब जैसे ही X डिक्रीज होगा तो उसका X से KH का मल्टीप्लीकेशन है, तो उसको हमें अप करना पड़ेगा, तभी KH और X का मल्टीप्लीकेशन आपको प्रेशर देगा, क्योंकि प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है तब आप KH की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैंने बताया था सोडा वाटर के एग्जांपल से कि भाई जैसे ही आप सोडा वाटर को गर्म कीजिए, हीट दीजिए, उसमें से जो CO2 है वो निकल जाएगा, तो X कम हो जाएगा। X कम हो जाएगा तो उसका मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ये और ये मल्टीप्लाई होके वैल्यू फिर से P नहीं दे पाएंगे, इसीलिए ये हो रहा है। और सेम वे अगर आप टेम्परेचर डाउन कर रहे हो तो आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जैसे ये बढ़ेगा तो आपकी KH वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लायर अब छोटा होगा तभी वो प्रेशर पे लेके जाएगा। तो ये चीज ऐसे भी आप समझ सकते हो, KH इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा, और KH इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। सो KH की पूरी बात हमने बताई। अब हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ ले रहे हैं। सिर्फ मैं बातें कर लूंगा आपको, क्योंकि बुक में सीधा दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है, इंडस्ट्री में जहां जहां पे CO2 या O2 की जरूरत है वहां पे प्रेशर देके उसको कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, वहां पे हेनरी लॉ अप्लाई होता है। देन बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी हेनरी लॉ। जितना आप ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन लोगे उतना वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, कहाँ पे, ब्लड में, और इतना हमारी बॉडी अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। थर्ड पॉइंट, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें CO2 जो हम एज अ सॉल्यूट यूज करते हैं वहां पे भी हेनरी लॉ अप्लाई होता है। मेनली 2 पॉइंट्स आर देयर। वन इज कॉल्ड ब्लेंड, ये हमें समझना है। व्हेन स्क्यूबा डाइवर, ये मान लो सी वाटर है, स्क्यूबा डाइवर अंदर जाता है तो उसके पास यहाँ पे एक सिलेंडर होता है। स्क्यूबा डाइवर पानी के अंदर जाएगा तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा ऐसे ऐसे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जो सिलेंडर में गैस है वो गैस कहां जा रहा है, हमारे रेस्पिरेशन में। अब जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाओगे वैसे वैसे पानी का प्रेशर भी अप्लाई होगा, तो प्रेशर अप्लाई होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जो सिलेंडर में से गैसेस डिसॉल्व हो रहे हैं मेरे ब्लड में, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये अच्छी बात है। बट द थिंग इज दैट जब स्क्यूबा डाइवर अपना काम खत्म करके ऊपर की ओर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, डाइव कर रहा है, नाउ स्क्यूबा डाइवर स्टार्ट्स टू कम टूवर्ड्स सरफेस। जैसे ही वो सरफेस पे आने का शुरू करेगा अब प्रेशर डिक्रीज होना शुरू करेगा। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो ब्लड में गैस डिसॉल्व हुए हैं वो गैसेस बाहर आने शुरू हो जाएंगे, तो अब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ब्लड में से जो गैस है, सभी गैस है इसमें, तो N2 है,
पर ज्यादा N2 होता है तो N2 बाहर आने लगेगा। वो जैसे ही बाहर आएगा तो वो ब्लड कैपिलरी जो होती है वो कैपिलरी को ब्लॉक कर देगा। समझ रहे हो? देखो, सिलेंडर लेके स्क्यूबा डाइवर अंदर गया, तब उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड इंक्रीज। अब उसका काम खत्म हो गया। नाउ स्क्यूबा डाइवर अब सरफेस पे आ रहा है। जैसे ही वो सरफेस पे आएगा उसने प्रेशर डिक्रीज होने लगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो ब्लड में गैस सॉल्यूबल हो चुके थे वो अब बाहर आना शुरू करेंगे और उसमें N2 ज्यादा होता है। N2 बबल करता है, बबल प्रोड्यूस करता है, वो बबल्स ब्लड को क्लॉट कर देता है। ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो गया दैट इज कॉल्ड ब्लेंड। और उसके कारण ये भी हो सकता है स्कूबा डाइवर वहां पे मर भी सकता है, इतना ब्लड क्लॉटिंग। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा तो दूसरी जगह पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा। अब ये ब्लेंड की बात खत्म हुई तो यहाँ पे हेनरी अप्लाई हो रहा है। अब इससे बच्चे कैसे बच सकते हैं? तो N2 के कारण ये ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। तो अब हम क्या करें, इसको हम डाइल्यूट कर दें, यानी जो सिलेंडर लेके जा रहे हो उसको उसमें N2 का प्रपोर्शन कम करें और हीलियम का प्रपोर्शन ज्यादा करें। तो हीलियम डालने से N2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ओके, एंड ये करने के बाद ब्लेंड की सिचुएशन हम निकाल सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, एनोक्सिया। व्हाट इज एनोक्सिया? जैसे जैसे क्लाइंबर्स, हम मान लो माउंट आबू गए, हिमाचल प्रदेश के मनाली, शिमला, वहां पे गए, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगी वहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा, सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। चलो मान लो मनाली शिमला तक तो ठीक है, बट आप सोच लो जो एवरेस्ट पे जाते हैं वहां पे तो काफी हाइट है, वहां पे प्रेशर डाउन हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इनटू आवर ब्लड वो भी कम हो जाएगा और आसपास भी सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाएगी। तो ऐसे पॉइंट पे आदमी सोचना यानी उसकी थिंकिंग प्रोसेस कम हो सकती है, उसकी जो विजन है वो भी कम होता है, दैट इज कॉल्ड एनोक्सिया। ओके, सो ऑल दिस पॉइंट्स आर easily understood by Henry. Okay, so today's lecture we have completed Henry's law. Thank you.